In the previous video, we studied that is bus topology and the ring topology. Now we will study star topology. Each device is connected to a central node called a hub or a switch. As you can see in the diagram, that is, there is a central hub और a switch और जितनी भी devices हैं, devices A, B, C, D, E and so on. ठीक है, ये सारी डिवाइसेस डायरेक्टली कनेक्टेड हैं सेंट्रल नोड से, जिसे हम हब या स्विच भी कहते हैं. डिवाइसेस हमारी कुछ भी हो सकती हैं. इट कुड बी योर पर्सनल कंप्यूटर, योर लैपटॉप, योर मोबाइल एक्सेट्रा और एनी अदर डिवाइस. It has a dedicated point-to-point link. Dedicated point-to-point link है only to a central controller node. So point-to-point link I have already explained in the previous video. Point-to-point link का मतलब है कि the wire will be shared between two devices only, that is device B and the switch or the hub. कोई और device इस traffic को, इस link को share नहीं करेगी. That is known as the point to point connection. Okay, means जो link है वो traffic carry करेगी only between these two devices. No other device will share the link. तो डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक है. नेक्स्ट, डज नॉट अलाउ डायरेक्ट ट्रैफिक बिटवीन द डिवाइसेस लाइक इन मेश टोपोलॉजी. डज नॉट अलाउ डायरेक्ट ट्रैफिक बिटवीन डिवाइसेस. लाइक डायरेक्ट ट्रैफिक का मतलब ये है इस पॉइंट का, दैट इज कि डायरेक्टली बी से सी डेटा नहीं जा सकता. ठीक है, इसके लिए डायरेक्ट ट्रैफिक या डायरेक्ट डेटा ट्रैवल नहीं करेगा बिटवीन द डिवाइसेस. इट हैज टू गो थ्रू the central node. This is the central node. This is hub or a switch. hub और switch दोनों में से कोई भी हो सकता है. hub और switch ये सारी devices, routers I will cover up in the other videos. इन सब के बारे में दूसरी वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी. नॉर्मली switch ज़्यादा स्मार्टर और इंटेलिजेंट होता है hub से. ठीक है, क्योंकि ये फिल्टर और डेटा को फॉरवर्ड करता है, इजीली फिल्टर कर सकता है, डिटरमाइन कर सकता है कि मेरा टारगेट डेस्टिनेशन क्या है. ये कंप्यूटर्स के जितने भी आपकी डिवाइसेस हैं उनके एड्रेस को रिकॉर्ड करके टेबल में स्टोर कर सकता है. तो स्विचेस आर more smarter and intelligent than the hub. Both are used to connect the various devices or the network segments. So it depends on the requirement which is being used by the network, whether a hub or a switch. एक central controller होगा और device जो है वो directly communicate नहीं कर सकती B से C. B जो है पहले central controller को data send करेगी and then the central controller will send to the destination device. Next, it is used in the LAN. LAN में use होता है, local area network में this topology is being used. As you can see in the diagram that it gives a look of a star. That is why it is called a star topology. So all these points I have explained. That is, there is a central node. ये central node है, hub और switch है. Point to point link है. Point to point link यहाँ से यहाँ तक है. That is device B से लेकर central controller तक. There is no dedicated link between the computer B and the C. Dedicated link is between B and the central controller. Direct traffic नहीं है. It has to go through the central controller and then it will pass to the destination device. It is used in various local area networks. So let us now discuss the advantages one by one. A single computer failure do not bring down the computer नेटवर्क. रोबस्ट है ये नेटवर्क. क्यों? क्योंकि अगर मेरा कोई एक कंप्यूटर फेल हो जाता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क मेरा खराब नहीं होगा. ठीक है, एज यू कैन सी लाइक हियर कि अगर मेरा कंप्यूटर बी फेल हो गया, ठीक है, तो बाकी आपस में डिवाइसेस ए, ई, डी एंड सी कैन कम्युनिकेट थ्रू द सेंट्रल कंट्रोलर.
सो एक डिवाइस के फेल होने से पूरा का पूरा नेटवर्क खराब नहीं होगा। नेक्स्ट, डिवाइसेस कैन बी एडेड और रिमूव्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द नेटवर्क। ठीक है, ये अगर मेरी स्टार टोपोलॉजी है, ठीक है, तो इसके अंदर इजीली अगर मुझे कोई डिवाइस खराब हो गई, मुझे ये रिमूव करनी है, तो आई कैन इजीली रिमूव इट, क्योंकि सेंट्रल नोड से कनेक्शन हटा देंगे और इस डिवाइस को हटा देंगे, बाकी नेटवर्क मेरा एज इट इज रहेगा एंड द अदर डिवाइसेस कैन आल्सो कम्युनिकेट। अगर मुझे कोई नई डिवाइस ऐड करनी है, सिंपल आई विल टेक अ पीसी, एक वायर लूंगी एंड आई विल कनेक्ट दिस वायर टू द सेंट्रल हब, easily the new device can be added to the network. So easy to install and reconfigure the network. Next is easy fault identification, मतलब कि अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं पर पूरे नेटवर्क में फॉल्ट है, तो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, डेडिकेटेड पाथ है। अगर ये मेरा डिवाइस इस डिवाइस को डेटा सेंड कर रही है, तो अगर वो डेटा नहीं पहुंचा, इट मींस कि इस वायर या डिवाइस में प्रॉब्लम है। लेकिन तब है इजी फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन तब वर्क करेगा कि अगर मेरा सेंट्रल नोड काम कर रहा है, ठीक है, सेंट्रल नोड मेरा काम कर रहा है और फिर भी मेरा डेटा नहीं पहुंच रहा है डेस्टिनेशन पर, तो इट इज इजी टू आइडेंटिफाई दैट देयर इज प्रॉब्लम आइदर इन दिस वायर और इन दिस डिवाइस। ओके, सो दीज आर द एडवांटेजेस। नाउ जो ये वायर्स हैं, जो ये लिंक्स हैं डिवाइसेस के बीच में, इट कुड बी द कोएक्सियल केबल or the optical fiber or twisted pair cable, any type of cable can be used to connect the devices in star topology। ठीक है, और जो हब और स्विच है, वो सारे के सारे फंक्शंस को, जो ये मेरा हब है, ये सारे फंक्शंस को मैनेज करेगा नेटवर्क में। ओके, सो लेट्स कम टू द डिसएडवांटेजेस। नो रिलायबिलिटी। नो रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर मेरा सेंट्रल हब फेल हो गया, डेटा रिलायबल नहीं है, नेटवर्क रिलायबल नहीं है, सॉरी, नॉट द डेटा, नेटवर्क इज नॉट रिलायबल। इफ सेंट्रल हब फेल्स, द होल नेटवर्क विल बी डाउन। ऑब्वियसली अगर सेंट्रल हब फेल हो जाता है तो कोई भी डिवाइस कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर डिवाइस बी को डिवाइस ए से कम्युनिकेट करना है यहाँ पर, तो डेटा इसी सेंट्रल हब से जाएगा, और अगर यही सेंट्रल नोड फेल हो गया तो डेटा कैन नॉट बी सेंट टू द डेस्टिनेशन, हेंस द होल नेटवर्क विल बी डाउन। नेक्स्ट, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव है, क्यों एक्सपेंसिव है? ड्यू टू द नंबर एंड द लेंथ ऑफ द केबल्स नीडेड टू वायर ईच होस्ट टू द सेंट्रल हब। ठीक है, अगर ये कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है अगर हम कंपेयर करें रिंग और बस टोपोलॉजी से। ठीक है, रिंग और बस टोपोलॉजी से अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये एक्सपेंसिव पड़ेगा, क्योंकि बस टोपोलॉजी में क्या है, हमें सिर्फ एक मेन वायर चाहिए, बैकबोन केबल चाहिए और डिवाइसेस कनेक्ट कर देते हैं। रिंग टोपोलॉजी में भी कंपैरेटिवली कम वायर लगेगा, बट स्टार टोपोलॉजी में क्या है कि हर डिवाइस को सेंट्रल नोड से कनेक्ट करना है। सपोज इफ देयर आर 50 डिवाइसेस, 50 systems to be connected in local area network, then comparatively much wire will be used and it will increase the cost. So this was star topology. Next is mesh topology. mesh नाम से पता चल रहा है, mesh का मतलब होता है नॉर्मली नेट या वेब। वेब क्या होता है? जैसे मकड़ी का जाला, या नेट किसी भी चीज का हो सकता है, मटेरियल का, इट कुड बी प्लास्टिक, इट कुड बी मेटल। तो वो जो एक जाल होता है उसको हम मेश कहते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इस टोपोलॉजी के अंदर काफी कॉम्प्लिकेटेड वायरिंग होगी, लाइक द वेब और अ नेट, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। ठीक है, एक नेट की तरह, वेब की तरह है, काफी कॉम्प्लिकेटेड। So this is known as mesh, that is why it is called a mesh topology. Every device has a dedicated point to point link. हर डिवाइस का point to point link है। ठीक है, point to point link already explained, that is
the link carries traffic between these two devices only, device B and device C. The link will carry the data between these two devices. ठीक है, so this is point to point link. Every device has a dedicated point to point link to every other device. बाकी सारी devices से भी होंगी, मतलब B A से भी connected है, C से connected है, it is connected to D, it is connected to E. That is, one device is connected to every other device in the network. This is that is why it is called mesh topology. Link carries traffic only between two devices it connects. ठीक है, जो लिंक ऑब्वियसली अगर पॉइंट टू पॉइंट है तो वो जो ट्रैफिक है वो सिर्फ दो डिवाइसेस के बीच में ही ट्रैवल करेगा. लिंक कैरीज ट्रैफिक, जो ये लिंक है, जो ये वायर है बी और सी के बीच में, सिर्फ इन्हीं दो के बीच में डायरेक्टली डेटा विल ट्रैवल और द कनेक्ट, द लिंक विल कनेक्ट. नंबर ऑफ लिंक्स विल बी n into n minus divided by 2, where n is the number of nodes. मतलब कि इस नेटवर्क के अंदर कितने लिंक्स होंगे, लिंक्स मतलब वायर्स, कितने लिंक्स होंगे वो डिपेंड करता है कि कितने नोड्स हैं उस नेटवर्क के अंदर. सपोज देर आर 1 2 3 4 5 नोड्स आर देयर, 5 डिवाइसेस आर देयर, तो n इज द नंबर ऑफ नोड्स, तो n की वैल्यू हो गई 5, n दैट इज 5, देन n minus 1 4 divided by 2. इस फॉर्मूले के अंदर मैंने ये वैल्यू रख दी, n is 5, there are 5 devices, so it comes out to be 5 4 is 20, 20 divided by 2 is 10. तो 10 लिंक्स होंगे इस नेटवर्क के अंदर. लेट अस काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसको मैं काउंट नहीं करूंगी, इट इज ऑलरेडी काउंटेड. ठीक है, देन दिस 10, तो 10 लिंक्स हमारे होंगे. दिस आई विल नॉट काउंट because it has already been counted. This I will not count, this has already been counted. So I have counted all the wires, all the links. So there will be 10 links in this mesh topology. Now comes the advantages of mesh topology. Use of dedicated link guarantees that each connection carry its own data load, thus eliminating traffic problem. मतलब ट्रैफिक प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर देता है. क्यों एलिमिनेट कर देगा? क्योंकि डेडिकेटेड लिंक है. ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. एक लिंक होता है मल्टी पॉइंट कनेक्शन, मतलब कि ये एक कनेक्शन है और इससे बहुत सारी डिवाइसेस अगर कनेक्टेड है, दिस इज कॉल्ड मल्टी पॉइंट कनेक्शन. तो एक ही वायर पर, एक ही केबल पर सारी डिवाइसेस का डेटा अगर जाएगा तो ट्रैफिक हो जाएगा. ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है. मेश टोपोलॉजी में डेडिकेटेड लिंक है, मींस अगर डिवाइस ए को बी को सेंड करना है तो उसके लिए अलग वायर है, ए को अगर सेंड करना है डी को तो उसके लिए अलग वायर है. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, दैट इज A if you want to send to B, इसके लिए ये लिंक यूज करेगी. अगर A को D को सेंड करना है यही लिंक यूज करेगी. मींस डेडिकेटेड लिंक है, अलग अलग लिंक है सारी डिवाइसेस के लिए, तो ऑब्वियसली ट्रैफिक कम होगा. नेक्स्ट पॉइंट इज रोबस्ट. रोबस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर मेरा कोई नोड खराब हो गया नेटवर्क पर तो पूरा का पूरा नेटवर्क फेल नहीं होगा, बाकी डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट. दैट इज, सपोज अगर मेरी सी डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, देयर इज एनी हार्डवेयर और द सॉफ्टवेयर फेलियर, तो बाकी डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं. ठीक है, दैट इज ए कैन कम्युनिकेट टू डी, ए कैन कम्युनिकेट टू बी, ए कैन कम्युनिकेट टू ई, बट ए सी पर डेटा नहीं सेंड कर पाएगी क्योंकि इसी डिवाइस में प्रॉब्लम है. अदरवाइज द नेटवर्क, the other devices will communicate with each other. So network will not fail if one computer breaks down. Fault is diagnosed easily. Fault मतलब अगर कोई खराबी आ जाती है तो उसका पता लगाना बहुत इजी है. क्यों फॉल्ट अगर हमारा हो जाएगा? क्यों? क्योंकि देयर इज पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन. पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है
तो व्हाट हैपन्स कि अगर मुझे ए डिवाइस ने सी को डेटा सेंड करा और वो नहीं पहुंचा, एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, ये कैसे पता चलेगा कि सी पर डेटा नहीं पहुंचा? क्योंकि कोई भी डिवाइस जब डेटा रिसीव करती है तो वो एक्नॉलेजमेंट सेंड करती है कि डेटा मेरे पास पहुंच गया। तो अगर ए के पास एक्नॉलेजमेंट वापस नहीं आएगा तो इट विल अंडरस्टैंड देयर इज सम प्रॉब्लम। तो या तो इस वायर में प्रॉब्लम है या सी डिवाइस में प्रॉब्लम है। तो फॉल्ट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड कि देयर इज प्रॉब्लम इन दिस वायर और द डिवाइस, वी कैन इजीली आइडेंटिफाई। प्रोवाइड्स रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी वही है दैट इज कि हमारा नेटवर्क रिलायबल है। इफ वन लिंक और one device fails, the other systems can easily communicate with each other. So the network is reliable. It provides security and security. This is wrong. This is privacy. It provides security and privacy. Security and privacy provide करेगा क्यों? क्योंकि dedicated link है। सिर्फ अगर B डिवाइस डी को सेंड कर रहा है तो वो सिर्फ इन दोनों के बीच में ही कम्युनिकेशन हो रहा है, बाकी डिवाइसेस को नहीं पता कि बी और डी आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। ओनली द इंटेंडेड रेसिपिएंट सीज इट। बी अगर डेटा सेंड करेगा, जो भी मैसेज सेंड कर रहा है, तो वो बाकी दूसरी डिवाइसेस पर तो जा नहीं रहा ऑब्वियसली, तो फिर सिक्योरिटी प्रिवेसी है क्योंकि बाकी डिवाइसेस को नहीं पता, और सिक्योर है क्योंकि ओनली द इंटेंडेड डिवाइस, सिर्फ डी जो हमारी डेस्टिनेशन डिवाइस है वहां पर ही डायरेक्टली डेटा जाएगा। बीच में ना तो उस लिंक को कोई और डिवाइस शेयर कर रही है और ना ही वो मैसेज किसी और डिवाइस के पास जाएगा। सो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इज देयर इन दिस टोपोलॉजी। लेट्स कम टू डिसएडवांटेजेस। इंस्टॉलेशन एंड रिकॉन्फ़िगरेशन इज डिफिकल्ट। यस, क्योंकि मैश पूरा एक वेब है और उस वेब के अंदर अगर आप कोई किसी कंप्यूटर को हटा रहे हैं या किसी कंप्यूटर को लगा रहे हैं, किसी भी डिवाइस को, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, एक जाल के अंदर, इस जाल के अंदर आपको एक नई डिवाइस ऐड करनी है। सपोज देयर आर डिवाइसेस 5 टिल ई, सपोज आई एम एडिंग द 6th डिवाइस F। अब इस F को मुझे C से कनेक्ट करना है, D से कनेक्ट करना है, B से कनेक्ट करना है, A से कनेक्ट करना है, E से कनेक्ट करना है। कितना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम यहीं पर पेज पर दिख रहा है, कितना कॉम्प्लिकेटेड मैश हो गया है पूरा। तो अगर किसी डिवाइस को मुझे ऐड करना है तो इट हैज टू बी लिंक्ड टू ईच एंड एवरी अदर डिवाइस इन द नेटवर्क, सो इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट। और अगर किसी डिवाइस को हटाना है तो इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट क्योंकि सारी डिवाइसेस से मुझे कनेक्शन हटाने पड़ेंगे। इस यहाँ से तो ये डिवाइस हट गई, देन जितने भी उससे रिलेटेड लिंक्स हैं दैट शुड ऑल्सो बी रिमूव्ड फ्रॉम द नेटवर्क। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ केबल्स आर हाई। कॉस्ट जो है वो हाई है, हेंस सुटेबल फॉर लेस नंबर ऑफ डिवाइसेस। ये नेटवर्क तब बेटर है जब हमारे नेटवर्क पर कम डिवाइसेस को कनेक्ट करना हो। लिमिटेड नंबर ऑफ डिवाइसेस है देन मैश टोपोलॉजी इज गुड। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा सिक्योरिटी प्राइवेसी रहती है, फॉल्ट हम इजीली कर सकते हैं डायग्नोस, रोबस्ट है, रिलायबल है, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। लेकिन ये तभी सही है नेटवर्क जब हमारे कम डिवाइसेस को कनेक्ट करना है। ठीक है, तो हमारी कॉस्ट भी कम आएगी और इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करना भी इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। तो कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है केबल्स की, क्यों? क्योंकि एक डिवाइस भी बाकी 4 डिवाइसेस से कनेक्टेड है। आप देख ही सकते हैं डायग्राम में कि कितने ज़्यादा लिंक्स और कितने ज़्यादा वायर्स यूज होंगे, और ज़्यादा वायर यूज होंगे तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको डायग्राम में तो सिर्फ 1 2 3 4 5 डिवाइसेज हैं। सपोज देयर आर 50 डिवाइसेज और 100 डिवाइसेज ऑन द नेटवर्क, इन द नेटवर्क। अगर 100 डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करना है तो कितने लिंक्स चाहिए होंगे? 100 इंटू n-1 दैट इज 99 डिवाइडेड बाय 2, इतने तो हमें लिंक्स चाहिए होंगे। और फिर उनको कनेक्ट करना, नंबर ऑफ पोर्ट्स, ज्यादा पोर्ट्स चाहिए होंगे टू कनेक्ट द डिवाइसेस, सो इट विल बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड टू establish this network. Next topology is
ट्री टोपोलॉजी। नाम से पता चल रहा है ट्री टोपोलॉजी है तो ट्री की फॉर्म में होगी, रूट्स होंगी, ब्रांचेस होंगी, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी, ये मेरा पूरा एक ट्री है, इसमें दिस इज द रूट, दिस इज द ट्रंक, ये हमारे उसकी ट्री की ट्रंक है और ट्री में ये ब्रांचेस हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ ट्री टोपोलॉजी, इसलिए हम इसको ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी। बस और स्टार टोपोलॉजी, दो टोपोलॉजीज को मिलाकर जब हम नेटवर्क बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्री टोपोलॉजी। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी ऑल्सो। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड का मतलब होता है कि एक दो या दो से ज्यादा कोई भी अलग अलग टाइप की अगर टोपोलॉजीज, डिफरेंट टोपोलॉजीज हम यूज कर एक नेटवर्क बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ हाइब्रिड नेटवर्क। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली जब बस और स्टार को मिलकर बनाते हैं देन दैट इज कॉल्ड अ ट्री टोपोलॉजी। अदरवाइज कंबाइन तो हम रिंग और स्टार को कर सकते हैं, और मैश और स्टार, मैश और रिंग, किसी भी नेटवर्क्स और टोपोलॉजीज के कॉम्बिनेशन को हाइब्रिड कहते हैं। बट स्टार एंड बस विल बी कॉल्ड एज अ ट्री टोपोलॉजी, क्योंकि जब वो बनकर आता है इट गिव्स the look of a tree. This is a trunk and the branches, and the branches have their leaves. Central nodes of star topologies are connected to the main bus. Main bus से connected है central nodes of the star topology. बस टोपोलॉजी हमारी क्या थी? ये हमारी एक बस थी और इससे अलग अलग डिवाइसेस कनेक्ट थी, ये बस टोपोलॉजी है। तो यही आप इसको देख सकते हैं कि ये एक बस है, that is a trunk, this is the backbone cable or the trunk cable, इसको हम backbone cable या trunk cable कहते हैं, ठीक है। और इससे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो ये बस टोपोलॉजी हो गई। दिस इज द ट्रंक और ये डिवाइसेस हैं। स्टार टोपोलॉजी क्या थी? देयर विल बी द सेंट्रल नोड एंड ये स्टार टोपोलॉजी हो गई। तो ये स्टार टोपोलॉजी मेरी यहाँ पर है। तो दिस इज two topologies are combined, bus and the star. Now central nodes of star topology. Star topology का जो central node है, hub या switch, जो भी device है, ये जो central node है ये main bus से connected है, main bus, और the backbone cable और the trunk cable से connected है central node। इसी तरीके से जो ये दूसरा star topology है, इसका ये जो central node है it is connected to the main bus. So this point means this combines characteristics of bus and star topology. Obviously दो टोपोलॉजीज को हम combine कर रहे हैं तो दोनों की characteristics होंगी जो आपस में अपने इनके खुद के advantages disadvantages थे दोनों टोपोलॉजीज के, वो सारे इसमें include होंगे। So let us discuss the advantages and disadvantages of tree topology. Advantages: suitable for large networks. Large networks के लिए बेटर है ये। लार्ज नेटवर्क्स क्योंकि अलग अलग टाइप्स के नेटवर्क्स हैं और उनको कंबाइन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो लार्ज हो गई नेटवर्क। अलग अलग नेटवर्क्स को हम कंबाइन कर रहे हैं, सिंगल एक नेटवर्क नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लाइक कोई कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। सपोज ये कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है किसी यूनिवर्सिटी का, ये मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, और भी एक और इधर एक और डिपार्टमेंट होगा, एंड सो ऑन। डायग्राम में मैंने सिर्फ दो सेगमेंट्स दिखाए। तो दिस इज कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, दिस इज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। अब दोनों डिपार्टमेंट्स को अगर हमें आपस में उनकी डिवाइसेस कनेक्टेड है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की, और इधर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की डिवाइसेस भी आपस में कनेक्टेड है, बट ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं है। और अगर हम इन दो डिपार्टमेंट की लैब्स को, नेटवर्क्स को कनेक्ट करना चाहते हैं तो वी विल टेक वन वायर और द बैकबोन केबल एंड कनेक्ट दीज टू networks. So it will result in the tree topology. So this is why this topology in these cases, in these types of cases, this topology is used. Like computer science और management के अलावा we can say कि ये हमारा कंपनी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये HR डिपार्टमेंट है,
मार्केटिंग डिपार्टमेंट और एचआर डिपार्टमेंट के जो अलग अलग नेटवर्क्स हैं उन दोनों नेटवर्क्स को हमें कंबाइन करना है, तो वी विल टेक द बैकबोन केबल एंड कनेक्ट दीज टू नेटवर्क्स थ्रू दैट केबल। सो जब हमारे बड़ा नेटवर्क होता है तो हम ट्री टोपोलॉजी यूज करते हैं। इजी टू ऐड और रिमूव नोड्स और नेटवर्क, हमें नोड्स और नेटवर्क्स को रिमूव करना या ऐड करना इजी है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये मेरा एक नेटवर्क है, इसमें से मुझे किसी एक कंप्यूटर को हटाना है तो सिंपली आई विल टेक दिस डिवाइस, रिमूव, सिर्फ एक ये कनेक्शन हटाया, इस सेंट्रल नोड से कनेक्शन हटाया और पूरे इस एक नेटवर्क में से मेरी एक डिवाइस हट गई। मुझे नया कोई सिस्टम या डिवाइस ऐड करनी है, अगर मुझे इस डिपार्टमेंट में ऐड करनी है, सिंपल आई विल टेक दिस डिवाइस एंड कनेक्टेड टू द सेंट्रल नोड, सिर्फ सेंट्रल नोड से कनेक्ट कर दिया। ये मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में अगर मुझे ऐड करना है तो एक मैं डिवाइस लूंगी और डायरेक्टली सेंट्रल नोड से कनेक्ट कर दूंगी। सो इट इज इजी टू ऐड और रिमूव द नोड्स इन दिस नेटवर्क। नेक्स्ट पॉइंट, सिंस इट डिवाइड्स द नेटवर्क इन सब पार्ट्स, ये नेटवर्क को सब पार्ट्स में डिवाइड करता है, सो इट बिकम्स मोर मैनेजेबल। इसको मैनेज करना कंपैरेटिवली इजी है क्योंकि सब पार्ट्स में डिवाइड हो गया। सब पार्ट्स में, दिस इज द मेन नेटवर्क, ये पूरा एक नेटवर्क है, सब पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज सब पार्ट 1, सब पार्ट 2, सब पार्ट 3, सब पार्ट 4 एंड सो ऑन। तो अलग अलग सब पार्ट्स में या सेगमेंट्स कह लीजिए आप, तो दिस इज सेगमेंट 1, दिस इज सेगमेंट 2, अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, तो इसको मैनेज करना इजी है। कोई नए डिपार्टमेंट को, नए सेगमेंट को मुझे नेटवर्क को ऐड करना है, सिंपली मैं एक नई अलग से स्टार टोपोलॉजी बनाऊंगी और उसको कनेक्ट कर दूंगी इस केबल से, ठीक है। अगर मेरे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर सपोज दिस इज ए बी सी डी, देयर आर 4 डिवाइसेस, सी को ए को डेटा सेंड करना है, तो आई कैन इजीली आइडेंटिफाई, ठीक है, मैनेज करना इजी है, ऐड रिमूव, आई कैन इजीली आइडेंटिफाई कि प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर है, सी ने डेटा सेंड करा, वो ए पर नहीं पहुंचा, या तो इस लिंक में प्रॉब्लम है या फिर इस डिवाइस में प्रॉब्लम है, तो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम इसको, फॉल्ट को। अगर लेकिन कंडीशन ये है कि मेरा सेंट्रल नोड काम कर रहा है, तो सेंट्रल हब अगर मेरा काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो इट इज इजी टू आइडेंटिफाई। नेक्स्ट एडवांटेजेस, पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग। पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग आप लोगों को पता है व्हाट इज दिस। सो फॉर इंडिविजुअल सेगमेंट्स, अब पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग के बहुत सारे फायदे होते हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पुराने अपने टोपोलॉजीज में। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब ये है कि this particular device is linked to other device and this link is not being shared with any other device। इस लिंक को कोई और डिवाइस शेयर नहीं कर रही है, जो ये लिंक है वो सिर्फ इस डिवाइस और इस डिवाइस के बीच के लिए है, बाकी नो अदर डिवाइस इज बीइंग शेयर। तो पॉइंट टू पॉइंट लिंक है इंडिविजुअल सेगमेंट्स में, इंडिविजुअल सेगमेंट्स में दिस इज द सेगमेंट और इस सेगमेंट में ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स हैं, इस सेगमेंट के लिए ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स क्या एडवांटेज था, दैट इज कि सिक्योर रहता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हमेशा हमारा, और फॉल्ट इजीली आइडेंटिफाई करते हैं, जैसा अभी मैंने यहाँ पर बताया कि इजीली फॉल्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सी ने ए को डेटा सेंड करा, ए तक नहीं पहुंचा, इट मीन्स देयर इज द प्रॉब्लम इज हियर। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्री टोपोलॉजी। लेट्स कम टू डिसएडवांटेजेस। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है, यही हमारा बस टोपोलॉजी का डिसएडवांटेज था कि अगर हमारी बैकबोन लाइन ब्रेक हो जाएगी तो पूरा का पूरा नेटवर्क हमारा डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ द नेटवर्क बिकम्स एक्सट्रीमली लार्ज, अगर बहुत ही ज्यादा बड़ा नेटवर्क हो गया तो फिर इसको मैनेज करना डिफिकल्ट है। लार्ज नेटवर्क तो तक तो ठीक है कि कुछ डिपार्टमेंट्स को ऐड करा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट्स को ऐड करना है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके नेटवर्क्स को अगर हमें कनेक्ट करना है, तो फिर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज दिस नेटवर्क, ठीक है। तो ये हमारी बैकबोन थी, ये डिसएडवांटेज है। अगर यहाँ इसी बैकबोन, इस केबल में अगर प्रॉब्लम आ गई
तो पूरा का पूरा नेटवर्क हमारा फेल हो जाएगा। नो सिस्टम, कोई भी आपस में ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड का मतलब मैं बता चुकी हूँ, दैट इज जब हम दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजी, अलग अलग टाइप की जो टोपोलॉजी होती हैं, उनको जब हम कंबाइन करके कोई नेटवर्क बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ हाइब्रिड टोपोलॉजी। अ नेटवर्क स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स मोर देन टू टोपोलॉजीज इज नोन एज अ हाइब्रिड टोपोलॉजी। मतलब दो टोपोलॉजीज से, दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजीज को बनाकर जो नेटवर्क बनेगा, दैट इज कॉल्ड अ हाइब्रिड टोपोलॉजी। It is a combination of two or more topologies. Two or more topologies का combination है. As you can see here in the diagram, अलग अलग types की आपको तीन topologies दिख रही हैं. ये कौन सी topology है? This is a ring topology. This is a bus topology, and this, as you can see, is a tree topology. तो तीन अलग अलग टाइप की टोपोलॉजीज, रिंग, बस और ट्री, तीनों को कंबाइन कर जो टोटल नेटवर्क बना, हमारा फाइनल नेटवर्क बना, दैट इज कॉल्ड द हाइब्रिड टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी क्या था? बस, ये हमारी बस हो गई और ये उसकी ब्रांचेस हो गई। स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी कंबाइन कर ट्री टोपोलॉजी बनाती है, और दिस इज द ट्रंक एंड दीज आर द ब्रांचेस। सो देयर आर थ्री टोपोलॉजीज इन दिस डायग्राम। ऑब्वियसली अब अलग अलग टोपोलॉजीज यूज हो रही हैं, तो सबके अपने बस टोपोलॉजी के जितने भी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस थे, इसमें उसका फर्क पड़ेगा, इफेक्ट करेगा इस नेटवर्क को। सिमिलरली रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, अब इट विल दिस नेटवर्क विल एग्जिबिट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑल द टोपोलॉजीज इंक्लूडेड इन दिस नेटवर्क। इन सब के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इंक्लूड हो जाएंगे। So let us see the advantages. Already existing networks can be easily combined. Already existing networks can be easily combined without modifying the existing networks. जो already exist कर रहे हैं networks, उनको बिना change करे हम आपस में जोड़ सकते हैं। Like कोई ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में जो सबसे पहले नया डिपार्टमेंट बना था, तब उन्होंने बस टोपोलॉजी अपने डिपार्टमेंट में नेटवर्क थी। देन सेकेंड डिपार्टमेंट में रिंग टोपोलॉजी थी, थर्ड डिपार्टमेंट में ट्री टोपोलॉजी थी। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग टोपोलॉजी है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स हैं। तो इनको जब हमें कंबाइन करना है तो वी कैन ईजिली डू इट। तो हमें इन टोपोलॉजीज, इस पर्टिकुलर टोपोलॉजी में कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, रिंग में कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, बस में कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ इसको डायरेक्टली बस को मैंने कनेक्ट कर दिया रिंग से, इस बस को मैंने कनेक्ट कर दिया ट्री टोपोलॉजीज से। तो आपस में सिंपल एक केबल लेंगे और इन नेटवर्क्स को कनेक्ट कर देंगे। सो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज, दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स, जो ऑलरेडी नेटवर्क है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी, तो उसको हमें चेंज करे बिना हम नेटवर्क्स को इजीली कंबाइन कर सकते हैं। सेकेंड एडवांटेज इज इजीली स्केलेबल। स्केलेबल का मतलब होता है एक्सपैंड करना। तो इस नेटवर्क को एक्सपैंड करना इजी है। सपोज कोई और, ये हमारे तीन डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट 1, 2 एंड 3, कोई फोर्थ डिपार्टमेंट और आ गया। फोर्थ डिपार्टमेंट की ऑलरेडी टोपोलॉजी है कोई भी, सपोज यहाँ पर एक और ट्री टोपोलॉजी या मैश टोपोलॉजी सपोज यूज हो रही है इस डिपार्टमेंट के अंदर, तो उस नेटवर्क को और इस नेटवर्क को मुझे इजीली सिर्फ कनेक्ट करना है और ये पूरा का पूरा नेटवर्क मेरा एक्सपैंड हो गया। तो इट इज इजी टू स्केलेबल, इट इज इजीली स्केलेबल। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल है क्यों? कैन बी डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल है कि सपोज डिपार्टमेंट 1 में मुझे सिर्फ बस टोपोलॉजी चाहिए ड्यू टू सम रीजंस की ब्रॉडकास्ट मुझे मैसेज करना है, कोई भी रीजन हो सकता है, या रिंग टोपोलॉजी चाहिए, आई वांट कि मेरे डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में सिर्फ रिंग की फॉर्म में आपस में कम्युनिकेशन हो। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग इजीली हम इसको डिजाइन कर सकते हैं।
नाउ कम्स टू द डिसएडवांटेजेस. इंस्टॉलेशन इज डिफिकल्ट. इंस्टॉल करना डिफिकल्ट है. इंस्टॉलेशन से मतलब यहाँ पर है कि पूरे का पूरा हम हाइब्रिड नेटवर्क अगर हम बना रहे हैं तो फ्रेश अगर हम बना रहे हैं तो वो बहुत डिफिकल्ट है. अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है डिपार्टमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है. देन इट इज दैट इट कैन बी इजीली कंबाइंड. ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेटवर्क से उनको सिर्फ कंबाइन करना है, वो एडवांटेज है. लेकिन अगर हमें फ्रेश इंस्टॉल करना है, किसी कोई नई कंपनी सेटअप हुई है और उस नई कंपनी में हाइब्रिड टोपोलॉजी चाहिए तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की पहले तो अलग अलग टोपोलॉजीज आप क्रिएट करेंगे, डिजाइन करेंगे, फिर उसको आपस में कंबाइन करेंगे. तो फ्रेशली जब हम इंस्टॉल करते हैं तो कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है. फॉल्ट डिटेक्शन इज डिफिकल्ट. इस टोपोलॉजी में फॉल्ट को डिटेक्ट करना डिफिकल्ट है. क्यों? क्योंकि सपोज इस डिपार्टमेंट का जो ये कंप्यूटर है वो इस डिवाइस को डेटा सेंड कर रहा है, मैसेज सेंड कर रहा है, ठीक है. तो अगर रिंग टोपोलॉजी ऑलरेडी आप जानते हैं कि क्या होता है कि टोकन की फॉर्म में डेटा ट्रैवल करेगा इस डिवाइस से, पहले इधर जाएगा, देन इट विल गो टू हियर, देन इट विल गो टू हियर, देन इट विल मूव ऑन टू द बस टोपोलॉजी और फिर मैसेज जो है ब्रॉडकास्ट हो जाता है. तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक डेटा नहीं पहुँचा मेरा तो बहुत डिफिकल्ट है ये आइडेंटिफाई करना कि प्रॉब्लम कहाँ पर है. इस डिवाइस पर है, इस लिंक पर है, इस डिवाइस पर है, यहाँ पर है, इस डिवाइस है. दिस देयर आर मेनी डिवाइसेस इन बिटवीन, देयर आर मेनी डिवाइसेस एज वेल एज द लिंक्स. सो इट इज डिफिकल्ट टू डायग्नोज द फॉल्ट इन द हाइब्रिड टोपोलॉजी. डिजाइन इज कॉम्प्लेक्स सो मेंटेनेंस इज हाई, दस एक्सपेंसिव. अगर हम फ्रेश नेटवर्क अगर कोई इंस्टॉल कर रहे हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है. कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन की वजह से मेंटेनेंस हाई हो जाती है. मेंटेनेंस हाई है तो कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव होगा ये एज कंपेयर टू अदर टोपोलॉजी. सो इट एग्जिबिट्स द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द टोपोलॉजी. मतलब रिंग टोपोलॉजी के जितने भी एडवांटेजेस थे वो इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे और जो डिसएडवांटेजेस थे दैट विल ऑल्सो दिस नेटवर्क इंक्लूड सिमिलरली ऑफ द बस टोपोलॉजी एंड द ट्री टोपोलॉजी. जो हमारी वाइडली यूज्ड होती है वो हमारी हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है. क्योंकि नॉर्मली अगर हम सोचें तो अलग अलग नेटवर्क्स होते हैं. अगर मेरी कोई स्मॉल लोकल एरिया नेटवर्क है, छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है और आपकी कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है एंड नाउ वी want to tie up with each other. आपकी और मेरी कंपनी जो है टाई अप करना चाहिए तो मेरी कंपनी में अलग नेटवर्क था लोकल एरिया नेटवर्क, आपकी कंपनी में अलग लोकल एरिया नेटवर्क था. नाउ उन दोनों अलग अलग नेटवर्क्स को कंबाइन करना इज पॉसिबल थ्रू हाइब्रिड टोपोलॉजी. ऐसा नहीं है कि अगर आप रिंग यूज कर रहे हैं तो मैं अपना नेटवर्क में चेंज करवाऊँ और ट्री टोपोलॉजी से वापस रिंग टोपोलॉजी में कन्वर्ट करूँ अपना नेटवर्क. तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना. अलग डिफरेंट नेटवर्क्स कैन बी कंबाइंड टुगेदर with the help of hybrid topology, and these are the advantages and disadvantages of this topology. If you liked the video, kindly like and subscribe the channel. Thank you.